آج کل ایک ترک مصنفہ بنام الف شفق کا ناول 40 رولز آف لو زیر مطالعہ ہے، جس میں مولانا روم اور شمس تبریزی کی ملاقات اور دونوں شخصیات پر اس کے اثرات کو عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 40 اصول دراصل شمس تبریزی کے اقوال ہیں۔ سوچا کہ ان کا ترجمہ کر کے اردو محفل پر شیئر کیا جائے، چنانچہ محبت کے 40 اصول کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ نمبر 2، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدائے تصورات۔ نمبر 3، قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہے۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بھی بطن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ علماء اور فقہا جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے درجے پر ہیں۔ دوسرا درجہ صوفیہ کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ صرف انبیاء مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو۔ ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ نمبر 4، تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے اور صومعے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ نمبر 5، عقل اور دل 2 مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں۔ ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ نمبر 6، دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ و بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے، اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، تنہائی اور خلوت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں جو خدا کا مخصوص جلوہ ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں ہی تمہیں دکھائی دے گا۔ نمبر 8، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا۔ عطا ہو یا منع، ہر حال میں شکر۔
नंबर 9, सब्र इस बात का नाम नहीं है कि इंसान उज़्व मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूरअंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नज़र रखते हुए रब पर भरोसा रखे। सब्र क्या है? सब्र यह है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे, जब रात के घुप अंधेरे पर नज़र पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। बेसब्री यह है कि इंसान इतना कोताबीन और कम नज़र हो कि मामले के अंजाम पर नज़र डालने से कासिर हो जाए। आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को माह कामिल में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त ज़रूर गुजारना पड़ता है। नंबर 10, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफ़र की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान ज़रूर रहे कि हर सफ़र ज़ात का दाखिली सफ़र ज़रूर बने। अगर तुम अपनी ज़ात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का बातनी सफ़र करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीके सफ़र हो जाते हैं। नंबर 11, जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्दो कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकालीफ से ज़रूर उठानी पड़ती हैं। जिस तरह एक दिन को अपनी रोशनी पूरी शिद्दत के साथ बिखेरने के लिए शदीद गर्मी और हद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसी तरह मोहब्बत भी दुख और दर्द के बगैर तकमील को नहीं पहुंचती। नंबर 12, मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे इस राह ने कुछ न कुछ पुख्तगी ना अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफ़र शुरू करते हो, तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। नंबर 13, आसमान पर शायद इतने सितारे ना हों जितने दुनिया में झूठे और नाकिस शुयूख पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शिद को किसी ऐसे मुर्शिद से न मिलाना जो नफ्स का पुजारी हो और अपनी ज़ात का असीर हो। एक सच्चा मुर्शिद कभी भी तुम्हें अपनी ज़ात का असीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही अपने नफ्स के लिए तुमसे ताबेदारी और तारीफ़ व तौसीफ़ का तकाज़ा करेगा, बल्कि इसके बरक्स वो तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से मुतारिफ़ करवाएगा। सच्चे और कामिल मुर्शिद तो किसी शीशे की मानिंद शफ़ाफ होते हैं ताकि खुदा का नूर उनमें से कामिल तौर पर छनकर तुम तक पहुंच सके। नंबर 14, ज़िंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो, उसकी मुज़ाहमत मत करो, बल्कि ज़िंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुज़र के अपना रास्ता बना सके। इस बात की फ़िक्र मत करो कि ज़िंदगी में नशोब फराज आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक में बेहतर है या मौजूदा हालत। नंबर 15, हर इंसान एक तशनाए तकमील फ़न पारा है जिसकी तकमील के लिए खुदा हर इंसान के साथ दाखिली और खारजी तौर पर मसरूफ़ कार है। ये एक मुसलसल अमल है। खुदा हम में से हर एक के साथ इनफरादी सतह पर मामला करता है, क्योंकि इंसानियत एक बेहद लतीफ़ और नफीस मुसव्वरी का शहकार है जिस पर सब्त किया जाने वाला हर एक नुक्ता पूरी तस्वीर के लिए यकसां अहमियत का हामिल होता है। नंबर 16, एक बुलंद व बरतर ज़ात और हर तरह के नक्स से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने अबनाए जिन्स से मोहब्बत करे जिनमें हर तरह की कमज़ोरियाँ और खामियाँ पाई जाती हैं। याद रखो कि इंसान उसी को जान सकता है जिससे वो मोहब्बत करने के कादिर हो। मोहब्बत के बगैर कोई मारिफत नहीं होती। जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते, तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान सकें। नंबर 17, असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफ़रत और तासुब के दब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। तुम तर्के दुनिया से और रोज़े रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। नंबर 18, पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीज़ें ख्वाह तुम्हें पसंद हों या नापसंद, तमाम लोग ख्वाह तुम उनके लिए रग़बत महसूस करते हो या कराहत, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। चुनाचे शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज़ का नाम है।
अगर तुम पूरी मेहनत और ध्यानत से कभी अपनी ज़ात के रोशन और तारीक गोशों को देखने के काबिल हो जाओ तो तुम पर एक अजीम और बरतर शऊर का दरिच्चा खुलेगा। जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो वो अपने रब को भी जान लेता है। नंबर 19, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने बर्ताव और रवैये को तब्दील कर दें तो इसके लिए पहले तुम्हें इस रवैये को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रवा रखे हुए हो। जब तक तुम अपने आप से पूरे खलूस और पूरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें मोहब्बत नसीब हो। और जब ये मर्तबा हासिल हो जाए तो फिर हर उस कांटे के लिए भी शुक्रगुजार रहो जो तुम्हारे रास्ते में फेंका जाता है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि तुम पर अनकरीब भूल भी निछावर किए जाएंगे। 20, इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर इसके बाद हर शय को अपने कुदरती अंदाज में काम करने दो और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। बहाव के साथ मत बहो, बल्कि खुद एक लहर बन जाओ जिसका अपना एक बहाव होता है। 21, उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यकता व मुमताज़ हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं, कोई भी दो दिल यकसां तौर पर नहीं धड़कते। अगर वो चाहता तो कि सब लोग एक जैसे हो जाएं, तो वो इनको एक जैसा ही बनाता। चुनाचे अब इन इख्तिलाफात की तौहीन व तनकीस करना और अपने अफकार को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगार आलम की क़ज़ा व क़दर और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मुतरादिफ है। 22, जब उसका सच्चा चाहने वाला कभी मैक़दे में जा पहुंचे तो वो मैक़दा उसके लिए मेहराब व मुसल्ले की सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन अगर कोई बहका हुआ मैखार मस्जिद में भी चला जाए तो वो उसके लिए मैखाना बन जाती है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, ज़ाहिर का नहीं। सूफ़ी लोगों को उनके हुलिये और उनकी वज़ा कटा से नहीं जांचते। जब एक सूफ़ी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आंखें बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके कल्ब में है उस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। 23, जिंदगी तो एक उधार की माने नापायदार है और असल हकीकत का एक धुंधला सा खाका और नकल। सिर्फ बच्चे ही असल हकीकत की बजाय खिलौनों से बहलते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खिलौनों पर फरेफ्ता होते हैं या बेकदरी से उन्हें तोड़ डालते हैं। इस जिंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा परस्ती तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफ़ी अपने रवैयों में इंतहा परस्त नहीं होते, बल्कि मुतवाज़िन और नर्म होते हैं। 24, परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो उसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे आमाल उसके खलीफा जैसे हैं? याद रखो कि हम पर लाजिम है कि हम इस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है उसको अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और इसके साथ जिएं। 25, जन्नत और दोज़ख के बारे में फ़िक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं, इसी लम्हे मौजूद में। जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं, जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी नफ़रत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं, दोज़ख की लपटों की जद में होते हैं। क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकता है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया है। उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और क्या इससे भी बड़ी कोई जन्नत हो सकती है? जब किसी शख्स पर ख़ास लम्हात में वो सकीनत नाजिल होती है, जब इस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ क़ुर्ब की हालत में अबदियत के असरार से हमकनार होता है। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। 26, कायनात एक वजूद वाहिद है। यहाँ हर कोई अपने अपने वाक़यात के गैर मरई धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। हम सब जाने अनजाने में खामोश मुकालमे का हिस्सा हैं। किसी को दुख न दो, नरमी और शफ़क़त का बर्ताव रखो। किसी की पीठ पीछे इसकी बुराई मत करो, खा एक बेज़रर सा जुमला ही क्यों न हो। अल्फाज जो एक बार हमारी ज़ुबानों से निकल आते हैं वो कभी फ़ना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वुसअत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्ररा वक्त में वापस हम तक आन पहुँचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ़ हम सबको एक इज्तिमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी और किसी भी आदमी की खुशी हम सब के होंठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। 27, ये दुनिया इस बर्फानी पहाड़ की तरह है
जहां बुलंद की गई हर आवाज पहाड़ों से टकरा कर बाज गूंज की सूरत में वापस हमतम पहुंचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे, तुम तक वापस जरूर पलट कर आएगी। चुनांचे अब अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलिमात मुंह से निकालो तो ये इस मामले को और भी गंभीर बना देगा और तुम मनफी ताकतों के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे। बजाय इसके कि तुम उसके लिए कुछ बुरा कहो, 40 दिन तक उसके लिए अच्छा सोचो और अच्छी बात मुंह से निकालो। तुम देखना कि 40 दिन बाद हर शय मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से तब्दील हो गए। 28 माजी ताबीर है, एक नुक्ता नज़र है, जबकि मुस्तकबिल माया यानी सराब है। दुनिया एक ख़त मुस्तकीम की शक्ल में वक्त के धारे में से नहीं गुजरती जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा हो, बल्कि वक्त हमारे अंदर से तदरीजन फैलती हुई लामुतनाही कोसों की सूरत में गुजरता है। अबदियत लामहदूद वक्त को नहीं बल्कि वक्त से मावरा होने का नाम है। अगर तुम अबदी लाइतहानी हासिल करना चाहते हो तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो और फ़कत लम्हा मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हा मौजूद ही सब कुछ था और सब कुछ है और हमेशा रहेगा। 29 तकदीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंगी की कोई कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और उसके 40 दर्जे हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दर्जा है जिस पर तुम अपना साज बजा रहे हो सकता है कि तुम्हारा साज तब्दील ना किया जा सके, लेकिन इस साज से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो, इसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। 30 सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सम से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालता। वो इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम नहीं लगाता और कोई उसका मुखालिफ और दुश्मन हत्ता कि गैर हो भी कैसे सकता है, जबकि उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं। वो तो खुद अपने नफ्स से मादूम है, चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात की जलवानुमाई है। 31 अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती दूर करनी होगी। चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज़्यादा नर्म दिल दरकार है। जिंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसीलिए पेश आते हैं ताकि हमें रिक़्क़त क़ल्ब अता करें, हमें खुद गर्जियों से निकालें, नुक्ताचीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादा दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीख कर नर्म हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। हक ताला के करीब होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे क़ल्ब इतने कुशादा हों कि तमाम इंसानियत इसमें समा सके और इसके बाद भी उनमें मज़ीद मोहब्बत की गुंजाइश बाकी रहे। 32 कोई इमाम, कोई पादरी, कोई रब्बी और इखलाकी और मजहबी कायदीन में से कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच हायल नहीं होना चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा सुहानी मुर्शिद भी। अपने इक़दार और उसूलों पर ज़रूर यकीन रखो, लेकिन इनको दूसरों पर मुसल्लत मत करो। अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहते हो तो कोई भी मजहबी फरीज़ा अदा करना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं। हर किस्म की पुतपरस्ती से दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हारी रूहानी बिनाई को धुंधला देगी। सिर्फ अपने रब को अपना मुर्शिद हकीकी समझो। इल्म और मार्फत ज़रूर हासिल करो, लेकिन इन उलूम और मारिफ को अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। 33 इस दुनिया में जहाँ हर कोई किसी न किसी मकाम पर पहुँचने और कुछ ना कुछ बनने की जद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ इसे एक दिन यहीं छोड़ देना पड़ जाता है, ऐसे में तुम सिर्फ और सिर्फ नायाफ्ती और नेस्ती को अपना मकसद करार दो। ज़िंदगी में इतने सबक बन जाओ जितना कि सिफर का हिंसा होता है। हम एक बर्तन की तरह हैं, बर्तन पर ख्वाब जितने मर्जी नक्शो निगार हों, लेकिन इसका कारामद होना सिर्फ इस खला की वजह से है जो इसके अंदर है। ये खला ही इसे बर्तन बनाता है और यही नायाफ्तगी और खला हमें भी दुरुस्त रखता है। किसी मकसद का हुसूल हमें मुतहर्रिक नहीं रखता, बल्कि यही खालीपन का शऊर है जो हमें रवां दवां रखता है। 34 सरे तस्लीम खम करने और राज़ी बर रज़ा रहने का ये मतलब नहीं कि हम बेअमल होकर उज़्व मुअत्तल हो जाएं, और ना ही ये जबरियत या तातील है, बल्कि ये तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। असल क़ुव्वत तस्लीम और रज़ा में है, ऐसी क़ुव्वत जो हमारे अंदर से फूटती है। वो लोग जो ज़िंदगी की अलूही हकीकत के सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं, वो ऐसे दायमी सकून और सकीनत में रहते हैं कि अगर सारा जहान मौज दर मौज फितनों में मुब्तला भी हो जाए, तब भी इस सकून में कोई खलल नहीं पड़ता। 35 इस दुनिया में जहाँ रह रहे हैं, यकसानियत और हमवारी हमें आगे लेकर नहीं जाती, बल्कि मुखालिफत और तज़ाद आगे लेकर जाता है।
اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے۔ ایمان ایک تدریجی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے تا وقت کہ انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے۔ 36 دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا۔ لوگوں کی سازشوں، دھوکہ دہیوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ باز ہے۔ ایک پتہ بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ بس اللہ پر سادگی سے اور پوری طرح یقین رکھو، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ 37 خدا بہت باریک بین اور کاریگر گھڑی ساز ہے، اتنا مدرست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے، اور یہ گھڑی بغیر کسی استثناء کے سبھی کے لیے بالکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا ایک لمحہ مقرر ہے۔ 38 کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساوی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر بریتھ کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے، نیا جنم لیتے رہنا چاہیے، اور نیا جنم لینے کا ایک ہی طریقہ